gave, it had a good impact on people, as well as that you carried about the Supreme Lord, that Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying and Bhagavatam and various scriptures. And I am B computers and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something. Asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments that based on scriptures. I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we'll have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik direct. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as getting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vansho jiva loke jiva bhutanah manasashta indriyani prakritisthani karshati. I know you are all about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal friends. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include here the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok which says that Father, I am the mother, I am the seed giving father. So that is 9 point. I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father, the mother, and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam, and the Yajur Vedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But actual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve his. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. I'm sorry, I'll answer in Urdu. Program is in Urdu, and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. Hindi is also not that good. It is simple, with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि मैं तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते नात से प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. के सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवत गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ खुदा बेटा नहीं जनता. गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन. लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड द बाइबल सेज दैट ऑल दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड. जो भी अल्लाह को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, और नो प्रॉब्लम, हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे अगर इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान. लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट. के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा कि शेख दीदा डॉक्टर जाकिर नाइक को बेटा, और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरे मान है.
लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना हुआ बेटा, तो प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं? दिस इज द लैंग्वेज। तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है, हमारा खालिक है, वो हमारा रब है, उस तरीके से आप कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसीलिए कुरान 99 सिफत अल्लाह ताला की, उसमें से अब जो आसान पूछ के नहीं लिखा है, लेकिन रब जो और मुश्किल है, रब बोलना अब से और मुश्किल है। जान अपने सिफतों में अब को नहीं लिखा, क्यों? लोग उससे सकते हैं, वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आमतौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं। उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए अजीम, वो बेशक बेटे थे, लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जन है, तो ऑब्जेक्शन। आप समझे ना? तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे है। एक वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5, क्या फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life। वर्स जो बाइबल की है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting। ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है बिगॉटन सन। लेकिन जब आप आरएसवी पढ़ते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, रिवाइज्ड बाय 32 स्कॉलर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस, कि ये लफ्ज जना हुआ, ये लफ्ज बिगॉटन इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, बनावटी है, ये बाइबल में था। और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लफ्ज को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है। तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, इन प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि खुदा हमारे वालिद है, क्यों? को गलत फहमी हो सकती है, लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, जने हुए नहीं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता, वेद सबसे ऊंची किताब है, वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास। तो अगर आपको जानना इतिहास के अंदर महाभारत का एक गीता, अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है, अगर दो मानी निकाल, आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास। आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, ना से कसिज जनिता ना चदीपा, इसके मानिए उस भगवान, उस ना वालिदे ना वालदा है। He has got no superior, no father, no mother। करता हूं, फिर मौका दूंगा। इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा को नहीं मानता हूं। क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मानता हूं, तो मैं जवाब दे सकता हूं। तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं। आपने कहे ना तस्वीर प्रतिमा अस्ति, ये हवाला है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा। अस्मा एक संस्कृत वर्ड है, अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे, लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुत, के मानी है फोटोग्राफ, मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर। वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में लिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है। फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते। तो कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7, अलु अहले जिक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए, इस मैदान का माहिर है। और जो मैं कह रहा हूं आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह पंडितों ने लिखी है। आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है, मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं। वो अलग बात है कि आप
को इल्म नहीं होगा, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते. I hope that answers the question, brother. Yeah, if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And if we are begotten sons of God, that is not accepted. And that is true. So my kind is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslims. So that will just create a disharmony without understanding the context. My concern, just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. The Christian says that Jesus is son of God, peace be upon him, because we know the context. We object a deity's name and say that this deity is the son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. No any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. Therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हमसे कि गलत फहमी हो, इसीलिए हम जानबूझ के ये भी नहीं कहते